तुम्हारा को रक्षाबंधन क्या पापा कंप्यूटर की बुक चाहिए। है? कंप्यूटर की हाँ? कंप्यूटर की बुक। ये तो आपको ये मैं बंदे पानी बहुत देने पर फिर बाद चलिए लेट्स स्टार्ट। तो नेक्स्ट स्टेप इज लिंकिंग द लिंकिंग डेटा। हम कैसा शीट उसमें डेटा को लेंगे इसकी रिगार्डिंग। तो फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर साक्षी स्टार्ट रीडिंग सम पॉइंट्स, उसके बाद फिर हम लोग वीडियोस पे मूव करेंगे। साक्षी आर यू देयर? डेटा यस सर। मेरे मल्टीपल शीट्स अगर इसका माइक्रोफोन ऑन है, सब लोग अपना माउथ करिए। referring to external data. A session is short, you can do multiple sheets. While working with real life data, you often to work multiple worksheets. A worksheet cannot serve you the purpose. If you have to compare expenses in your regional offices, you would prefer to have separate expense worksheet for each of your regional offices. But I think would to consolidate their other sheet. Similarly, if account maintained 2 or 3 banks, it would certainly want to maintain separate worksheet for each bank statement to validate data from these for its financial decisions. For such kind of situations, spreadsheet software facilitates the multiple sheets. Calci also provides this functionality. Let us see how you can use multiple sheets in Calci. ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल वर्कशीट का मतलब क्या हुआ कि मतलब कि हमारा एक वर्कशीट में एक डेटा पड़ा हुआ है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि एक बैंक है हमारे पास, किसी भी एम्प्लॉय का क्या कहते हैं 2-3 अकाउंट में बैंक है, ठीक है, 2-3 बैंक में अकाउंट है। तो बट ऑब्वियस है कि वो जब भी बैंक डाउनलोड अपना उस बैंक से अपना स्टेटमेंट डाउनलोड करेगा तो वो एक अलग शीट में आएगा, दूसरे बैंक का दूसरे शीट में आएगा। नाउ अगर उसको कंसोलिडेट करना है तो इन दैट केस दोनों वर्कशीट से डेटा वो लेके तीसरे में कंसोलिडेट करेगा। तो दिस इज अबाउट, तो यहाँ पे दो तुम्हारे बैंक के 2 वर्कशीट हो गई और तीसरे शीट में वो कंसोलिडेट कर रहा है, तो यानी कि मल्टीपल शीट हो गई यहाँ पे। तो बेस्ड ऑन दिस सब शीट से डेटा कैसे हम एक में ला के करें, दैट कैन बी इजिली डन इन एक्सेल ऑन योर कैलसी। तो लेट्स स्टडी आगे क्या क्या है, सेटिंग अप हाउ वी कैन डू दिस। Start. Setting up multiple worksheets can have multiple worksheets in it. Default of three worksheets. You can always insert and delete worksheets in a workbook. Viewing and selecting sheet. You can note how many worksheets are in a workbook by looking at the bottom left corner of the Calci window. The Calci displays name. The active sheet's name shown as active tab. To make another sheet active, all you need to do is click on its name. Inserting sheets. If you want to add more sheets to your workbook, you can follow the steps given below. एक मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पे जैसे कि तुमको फिगर में समझ में आ रहा है कि एक वर्कबुक में 3 बाय डिफॉल्ट 3 शीट होती है जो कि हमको प्रोवाइड करता है, चाहे कैलसी हो चाहे स्प्रेडशीट हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम चाहो तो और शीट को ऐड कर सकते हो, जो कि आगे हाउ टू सॉर्ट अ शीट इनसाइड द वर्कबुक। तो 3 शीट है, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा शीट 1 एक्टिव मोड में रहता है और 2 इनएक्टिव में। तो जिसको तुमको काम करना है, अगर तुम शीट 2 पे काम करना चाहते हो तो क्लिक ऑन दैट, और शीट 3 पे काम करना है तो शीट 3 पे क्लिक करोगे तो शीट 3 खुल जाएगा, ठीक है, यही कह रहा है। नाउ हाउ टू इंसर्ट अ शीट, इसके बारे में बता रहा है। हमको अगर नया शीट ऐड करना है तो हाउ वी आर गोइंग टू ऐड द शीट, द स्टेप्स आर गिवन। स्टार्ट। Inserting sheets. If you want to add more sheets to your workbook, you can follow this given below. As well, we'll insert a sheet. The first in all cases, a sheet that will be next to or after the new sheet. Then do any of the following. First, select the sheet will be next to or after the new sheet. And click Command Insert and then Sheet. Or right-click on the tab and select Insert Sheet. Or click in an empty space at the end of the line of the sheet tabs. Third, Calci will now display third sheet dialog. Then you can enter the sheet name, default name sheet, and position in the worksheet. For the sheet, she can insert this dialog. जैसे हमको इंसर्ट शीट, ये सबको पता ही है, यहाँ पे स्टेप दिया है। हम इंसर्ट कमांड के अंदर शीट का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे
ठीक है, या तो हम राइट क्लिक, जहाँ पे ये देख रहे हो उंगली दिखाया हुआ है फिगर में, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे तुम राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक करके तुम इंसर्ट शीट का ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारा इंसर्ट शीट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन पूछ रहा है कि ये जो शीट इंसर्ट करना चाहते हो आइदर यू वांट बिफोर द करंट शीट और आफ्टर द करंट शीट। ठीक है, अब कितने शीट तुम इंसर्ट करना चाहते हो, आइदर यू वांट टू इंसर्ट 1 और 2 और जितने भी करना चाहते हो यहाँ पे नंबर डाल दो। और इफ यू वांट टू रीनेम इट, अगर तुम उसका नाम देना चाहते हो तो यहाँ से नाम भी दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट इट विल पिक द शीट। जैसे 3 शीट है ऑलरेडी, तो चौथा शीट इंसर्ट होगा तो बाय डिफॉल्ट इट विल टेक द नेम एज शीट 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम करके ओके करेंगे तो वी विल गेट द शीट इंसर्टेड इन आवर वर्कबुक। नाउ हाउ टू रीनेम इट, क्वाइट इजी, पढ़ लो इसको भी। Renaming a sheet, you can name a sheet, you can do it following. First, double click on the sheet tab or right click on the sheet, select name sheet, the menu is estimate. Second, both the above steps will open rename sheet dialog. We'll type the new name for your sheet and okay. ठीक है, यहाँ पे अगर तुमको अगर रीनेम करना है तो सीधे शीट के ऊपर जाके राइट क्लिक तो रीनेम का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक होगे, उसके भी नाम देना है। तो डिफॉल्ट 4 पे क्लिक हुआ है तो इसको तुम नया नाम यहाँ पे न्यू शीट दिया गया है, तो यहाँ पे न्यू शीट करके ओके कर दोगे तो इट विल बी रीनेम विद द न्यू शीट। ठीक है ना, हाउ टू डिलीट ए शीट ये भी पढ़ लो, इसमें भी राइट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन है, पढ़ लो इसके। Delete sheet. To delete a sheet, first right click on its name. Second, sheet short menu. Thinking sheet or using data sheets. If you're working with multiple sheets, must be some situation where you need to use branches over the sheet. In real life situations, such requirement are T1 as mentioned earlier. If company wants to consolidate all regional offices where regional offices data is available sheet. To use data from a sheet, all you need to do is qualified name. Within a sheet, a cell is referred to as cell is equals to column letters plus row number. Example, H5, T3 are valid cell reference within a sheet. ठीक है, तो सबको पता है सेल रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, सब लोगों को पता है कि हर सेल का एक एड्रेस होता है, वही सेल रेफरेंस बता रहा है कि कॉलम लेटर सबसे पहला तुम्हारा कॉलम का नंबर होता है, उसके बाद तुम्हारा रो का नंबर होता है। जैसे H5 हुआ, T3 हुआ, या A1 हुआ, या A2 हुआ, तो दिस इज कॉल्ड अ सेल रेफरेंस। एग्जांपल नाउ। But outside a sheet, its any cell would be referred to within the same workbook as name, then cell reference. We qualify name dot But sheet name dot sheet name dot cell reference, which is qualified name for cell outside sheets. Example, sheet 1 K5. Refer to K5 cell of sheet 1. Example, sheet 1 dot K5. Refer to K5 cell of sheet whose name is sheet 1. Now, say inside sheet 1, if you want to refer to cell C6 of sheet 3, you will write its qualified name. It is that sheet 3 dot C6. Qualified name of C6 of sheet C3 outside sheet 3 in the same workbook. Let us use it practically. चलो ठीक है, पढ़ लो, ये भी प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। First, open a new spreadsheet. Second, in sheet 1, the following formula in cell A1 equals to sheet 2 dot A1 sheet C4. Third, now sheet 2 of bottom of spreadsheet. Set the cursor in cell A1 there and enter a number 1400. Fourth, now click the sheet 3 tab at the bottom of the spreadsheet. Set the cursor in B4 there and enter a name set number 600. Fifth, now switch back to sheet 1. You will see that in our sheet 1 now stores 2000 because as per its formula it stores the sum of cells dot 1 and 3 dot E4 which have been respectively. 6. Tracking in sheet 2A1, sheet 1 and sheet 3 dot E4 cells. If any of these cells change their value, it contains of sheet 1 dot A1. No use data from work. All you need to do is use squad. ठीक है, यहाँ पे तुमको एक एग्जांपल है। ठीक है, अब हम जैसे लिए हम प्रैक्टिकल अपन, ठीक है, ये हाँ शीट है। ठीक है, बुक है। As you can see, we have the sheet 1 here, sheet 2 is here, is here. यहाँ मैंने यहाँ एक फॉर्मूला इक्वल टू sheet 1। ठीक है, sheet 1 मैंने लिखा sheet 1 क्योंकि इसका शीट का नाम है sheet 1 डॉट, मैंने डॉट लगाया, और सॉरी sheet 1 नहीं, sheet 1 तो है ही है, sheet 2 डॉट A1 मैंने किया, A1 प्लस sheet 3 डॉट
B4, ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला ये लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे शीट 1 क्या है, शीट यानी कि शीट 2 में सेल रेफरेंस डॉट A1, यानी कि शीट 2 में A1 के सेल पे और शीट 3 के B4 में जो भी वैल्यूज था उसको वो सम अप करेगा। तो चलिए शीट 2 के A1 में चलते हैं। शीट 2 का A1 एड्रेस क्या है, ये पहला बार है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलिए हम 1400 डाल देते हैं, ठीक है। आगे लग रहा है। हम यहाँ पे चलिए डेटा डाल देते हैं। अब चलिए A1 में जाते हैं। A1 में हम यहाँ पे 1400 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया A1 इसका एड्रेस है और ये शीट 2 में है, तो यहाँ पे 1400 मैंने डाल दिया। और शीट 3 में चलते हैं। शीट 3 के मैंने B4 में लिखा, तो B4 का एड्रेस क्या है, ये वाला एड्रेस है। तो यहाँ पे हम चलिए 600 डाल देते हैं, ठीक है, और एंटर किया। तो अब हम चलते हैं अपने शीट 1 जहाँ पे फॉर्मूला लगाया है। एज यू कैन सी हियर इसने डेटा ऑटोमेटिकली पिक कर लिया कि शीट 2 के A1 में मैंने 1400 डाला था और शीट 3 के B4 में मैंने 600 डाला था। तो ऑटोमेटिकली इसने ये मिल गया, इसको ये पता चल गया कि ये इसी शीट की 2 में A1 एड्रेस पे प्लस शीट 3 के B4 एड्रेस में जो भी वैल्यू है उसको सम करना है, तो द वैल्यू इज बिन गिवन। तो दिस इज हाउ वी कैन ऑल्सो डू द सेल रेफरेंसिंग। इसको क्या कहते हैं, लिंकिंग ऑफ ए डेटा विद इन ए सिंगल स्प्रेडशीट, ठीक है। सिंगल वर्कबुक के अंदर अगर हमको कोई डेटा को लिंक करना है, इस तरीके से हम कर रहे हैं। हियर द नेम ऑफ द शीट and the address, cell reference of the particular address is also required. Dot operation is very important. अगर dot operation आप नहीं करोगे तो in that case क्या कहते हैं, फॉर्मूला जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि ये किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्या बोल रहा है, लिंकिंग डेटा टू अदर शीट थ्रू कीबोर्ड। अगर हमको कीबोर्ड थ्रू करना है तो कैसे करेंगे, इसको भी पढ़िए। Links to other sheets to create links you create by using files created through keyboard. That is, to create sheet links keyboard while writing in the sheet, use file cells reference as described earlier. It is typed through keyboard sheet cell reference. For example, sheet 5.k5 means K5 cell of sheet with name sheet 5. Expenses.B9 means B9 cell of sheet with name expense. Savings.C4 means C4 cell of sheet with name saving. ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे तुमने देखा कि मैंने यहाँ पे इस फॉर्मूला को लिखने के लिए मैंने मैनुअली में कीबोर्ड से टाइप किया था sheet 2.A1 प्लस C3.B4। तो वो इसी चीज को बोल रहा है कि मैंने यहाँ पे कीबोर्ड से टाइप किया है यूजिंग कीबोर्ड, ठीक है। अब सपोज करो कि मैं यहाँ पे शीट नाम चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे शीट का नाम लिख देता हूँ, ठीक है, कर देता हूँ। तो इस शीट का नाम सिंग लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने देखो शीट 1 में शीट 1 को ऐसे रहने दिया, शीट 2 का नाम विनय कर दिया और शीट 3 का नाम मैंने सिंग कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला में हम जाएंगे तो देखो ऑटोमेटिकली इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया विनय.A1 प्लस सिंग.B4, ठीक है। उसने ये चेंज को ले लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे मैनुअली टाइप किया था। तो अगर ये नाम अगर कोई भी गलत, क्योंकि इसका नाम क्या है, विनय है शीट 2 का, और शीट 3 का नाम मैंने रीनेम करके सिंग कर दिया। तो इसके बेसिस पे इसको कीबोर्ड के थ्रू करते हैं। अब माउस के थ्रू क्या है, इसको पढ़ लो, हम लोग माउस के थ्रू भी बता देते हैं। How to use Creating links to other sheet through mouse. You have learned to create links to cells in other sheet by typing on keyboard. Through keyboard also you can create links. All you need to do this. First, start cell entry by clicking in it. Click is equals to if entering a formula. Second, then click on the sheet tab at the bottom and click on the desired cell. Third, come back to the point of the entry and repeat if you want to refer to other cells. Follow practical will make it clear. Want to deduct the expenses in sheet B in rental saving in sheet B from monthly salary in sheet 5B and store the results in any C4 of sheet 5. That is the formula is equals to C2 minus sheet 3 dot plus sheet 4 dot B. It's with the sheet 5 C cell.
Middle of sheet 5 active by clicking in. That sheet 5 should be active sheet and then click in C4 cell. Second, click on the icon is equals to on the formula and equal sign appear in the input line. Third, enter is equals to C2 minus bracket in the formula to enter the first part. Fourth, now click on sheet action as our total expenses in sheet 3's B15 cell and click in the cell B15. As soon as you click, it will add the cell's reference current formula being hidden sheet C4 cell. Fifth, plus in the and click sheet tab and then in C9 cell to refer sheet 9 cell. Six, type closing bracket in the formula and press enter. See, your formula will look properly in which you link to cells in other sheet using mouse. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि फॉर्मूला हम लोग करें वो आपने इसका नाम देने से कैंसिल कर दिया, ठीक है, नाम मैंने के नाम दिया, मैंने शीट का नाम चेंज कर दिया, अब शीट 1 में है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉलम मैंने मंथली सैलरी इज इक्वल टू कितना डाल दिया, जो भी अमाउंट है मैंने डाल दिया, ठीक है, 7 लाख रुपए मैंने मंथली सैलरी डाल दिया। अब एक्सपेंसेस में हम जाते हैं, यहाँ पे हमको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो फॉर्मूला के लिए मंथली सैलरी ये है, तो फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या है, यानी कि F2, यानी कि ये वैल्यू में से एक्सपेंसेस घटेगा और सेविंग भी घटेगा, ठीक है। तो हम चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर्मूला बार में इक्वल टू, तो फॉर्मूला बार कहाँ है इसका फॉर्मूला बार कहाँ है, खोजना पड़ेगा मुझे, कहीं दिख रहा है तुम लोग को फॉर्मूला बार? फॉर्मूला बार तो वहीं पे ना होता है जहाँ पे लिखा जाता है फॉर्मूला। नहीं बेटा, यहाँ पे इक्वल टू सम वाला जो ऑटो सम का जो फंक्शन होता है इसके अंदर होगा, इसमें दिखा नहीं रहा है। चलिए तो इसका फॉर्मूला, चलिए हम लोग मैनुअली इसमें कीबोर्ड से दिखाते हैं, लेकिन तुम लोग को माउस से कैसे हम इसका डेटा पिक करेंगे वो मेन चीज है। इक्वल टू साइन काटने के लिए इक्वल टू, इसका एड्रेस है, सीधे में माउस अब क्वांटल वहाँ पिक करो, ऑटोमेटिक इसका एड्रेस F4 ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने माइनस साइन किया, फिर ब्रैकेट साइन लगाया। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस, सॉरी पहले इसको यहाँ पे एक एक्सपेंसेस में लिख लेते हैं, नहीं तो दिक्कत करेगा। यहाँ पे सपोज करो कि मैंने एक्सपेंसेस, यहाँ पे एक्सपेंसेस सपोज करो कि मैंने 3 लाख रुपीस या 30,000 रुपये एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखा, और सेविंग में मैंने यहाँ पे सपोज होगी सेविंग मैंने 5 लाख किया, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला में रखा हूँ इक्वल टू, इसका एड्रेस पे मैंने गया, माउस से लेके क्लिक किया तो F4 आ गया, माइनस किया ब्रैकेट के अंदर। अब मुझे एड्रेस लेना है उसका, माउस को यूज करते हैं कीबोर्ड से टाइप करने का। मैं सीधे एक्सपेंसेस वाले में इसमें जाऊंगा और यहाँ पे जाने के बाद इसका एड्रेस पे मैं माउस पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने ले लिया expenses.D5, ठीक है। अब मैं दूसरे में जाता हूँ, सेविंग में गया, और सेविंग में जाने के बाद मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली सॉरी यहाँ पे इसको लिया, फिर मैंने प्लस साइन लगाया, फिर उसके बाद सेविंग में गया और यहाँ पे इसके एड्रेस पे जाने पर मैंने क्लिक किया, तो देखो, और उसके बाद मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया, देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एड्रेस में देखो F2 इक्वल टू F4 माइनस ब्रैकेट के अंदर expenses.D5 प्लस saving.C6। देखो मैंने सिर्फ माउस से क्लिक किया, इसने ऑटोमेटिकली वहां से उसका रेफरेंस पिक कर लिया, मतलब शीट नेम डॉट सेल एड्रेस, सेल रेफरेंस, और उसके बाद मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया। अब उसके बाद एंटर कर दूंगा, तो यू कैन सी हियर मेरा सीधे फॉर्मूला यहाँ पे ये चीज़ कैलकुलेट होके आ गया कि 7 लाख में से 5 लाख और 30,000 घटा जो भी, तो इसके कैलकुलेट करके मेरा जो मंथली सेविंग आया, जो सैलरी आई, वो 1,70,000 आया, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द माउस
हम लोग माउस के थ्रू भी इसको हेल्प से हम किसी भी एड्रेस को पिक कर सकते हैं, सेल एड्रेस यूजिंग द शीट नेम एंड डॉट दिस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस। नाउ नेक्स्ट, सबको समझ में आ गया ना कैसे माउस से हमको पिक करना है? सर यस सर यस सर। यस सर। यस टू द हाइपर लिंक टू द शीट। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं। अब इसको एक वीडियो जो है हम लोग उस वीडियो को देख लेते हैं। आपका लिंक टू एक्सटर्नल डेटा, देन आपका लिंक टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। स्टार्ट करते हैं। ये ओपन ऑफिस कैल्क की स्क्रीन आपके सामने ओपन है। पहला पॉइंट है सेटअप मल्टीपल शीट्स बाय इंसर्टिंग न्यू शीट। कि व्हेन यू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट इट हैज बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स नेम्ड शीट 1, शीट 2, शीट 3। कि जब आप शीट्स पर काम करते हैं, ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की एक फाइल है जिसे हम वर्कबुक के नाम से भी जानते हैं। और इस वर्कबुक डॉक्यूमेंट में नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर जहां माउस का कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। बाय डिफॉल्ट ये शीट के 3 नाम आते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। यानी आप कोई भी ओपन ऑफिस कैल्क में एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको 3 शीट बाय डिफॉल्ट मिलती हैं और इसी में आप अपनी शीट्स को ऐड कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ऐड करने के लिए आपके लिए 3 ऑप्शन है। आप इंसर्ट मेन्यू में शीट ऑप्शन पर जाकर ये काम कर सकते हैं, राइट क्लिक करके इंसर्ट शीट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आप जो खाली स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है यानी जहां शीट्स खत्म होती हैं, इस ब्लैंक स्पेस पर भी क्लिक करके आप इंसर्ट शीट कर सकते हैं। हम तीनों को एक बार ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये ऑप्शन कैसे काम करेंगे। इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक किया, यहाँ पर शीट ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया तो ये एक इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स आ गया जहां पे ऑप्शन आता है बिफोर करंट शीट। कि अभी आप शीट 1 पर आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो क्या इस शीट से पहले वो शीट ऐड होगी या आफ्टर करंट शीट, जिस भी शीट को आपने सिलेक्ट किया उसके बाद होगी। ये दोनों ऑप्शन आप काम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। फिर आता है शीट पर न्यू शीट। जो शीट आप लेंगे वो बिल्कुल नई होगी, उसमें नंबर ऑफ शीट कितनी आप ऐड कर रहे हैं। अगर आप एक शीट ऐड कर रहे हैं तो उस शीट का नाम अगली शीट के हिसाब से शीट 4 आ रहा है। आप अगर यहाँ पे कुछ और नाम देना चाहते हैं तो नंबर ऑफ शीट यानी एक शीट आप ऐड कर रहे हैं और उस शीट का नाम भी आप पहले से बता करके चल रहे हैं, तो ये एक तरीका है। फिर आप अगर यहाँ पर ज्यादा शीट्स ऐड करना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी आपको चाहिए आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, जितना आपको काम है उसके हिसाब से अपनी शीट ऐड कर सकते हैं। जब आप कोई कैल्क पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं और हाइपर लिंकिंग और लिंकिंग से रिलेटेड काम करते हैं तब हमें नंबर ऑफ शीट्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अदरवाइज तो एक स्प्रेडशीट पर जो एक शीट बनी है वही काफी प्रैक्टिकल्स करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट होती है। लेकिन समझने के लिए कि शीट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, फिर ऑप्शन है आपका फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल का मतलब है आप शीट को किसी दूसरी फाइल से उठाना चाह रहे हैं, यानी कि इस कंप्यूटर इस स्क्रीन के लिए इस फाइल के लिए तो वो शीट नहीं होगी लेकिन किसी दूसरी फाइल की शीट को हम यहाँ पर लिंक करना चाह रहे हैं, तो ये फ्रॉम फाइल ऑप्शन है। इसके लिए हमें क्या करना है तो अभी प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। उससे पहले अभी हमने देखा इंसर्ट मेन्यू में शीट ऑप्शन पर जाकर हम ये काम कर सकते हैं। यही काम हम राइट क्लिक करके भी इंसर्ट शीट ऑप्शन यहाँ पर है ये रहा, तो ये यही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तीसरा, इस ब्लैंक स्पेस पर भी हम क्लिक करेंगे तो भी इंसर्ट शीट ऑप्शन आ जाएगा। आप देखते हैं फ्रॉम फाइल में क्या होता है। मान लीजिए हमने फ्रॉम फाइल पर क्लिक किया, अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ब्राउज और लिंक। तो ब्राउज से हम उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमने ब्राउज बटन पे क्लिक किया, हमने डेस्कटॉप पे एक लर्निंग आउटकम 2 नाम से एक फोल्डर बनाया है। इस फोल्डर में एक फाइल कैल्क 1 नाम से है, हमने इसको सेलेक्ट किया और ओपन किया। अब कैल्क 1 जो हमारी शीट है उस फाइल पर कितनी सारी शीट है, एक कंसोलिडेट, सब टोटल, व्हाट इफ, ST1, ST2, ST3, ये सारी की सारी शीट्स हैं। तो आप इनमें से कोई शीट्स, ये ST1, ST2, ST3 ये रेंज है, यानी आप रेंज का डेटा भी यहाँ पर उठा सकते हैं एक शीट के लिए। अब हम मान लीजिए ये सोल्वर वाली शीट हम यहाँ पर उठाना चाहते हैं। अब पहले मैं अभी इस शीट को इंसर्ट नहीं कर रहा, अभी मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अभी हम डेस्कटॉप पर चलते हैं, कैल्क 1 वाली फाइल को ओपन करते हैं। कैल्क 1 को हम ओपन करेंगे यहाँ पर। पहले हम एक बार देखते हैं कि कैल्क 1 में क्या क्या है। तो कंसोलिडेट, सब टोटल, व्हाट इफ, गोल 6, सोल्वर और बाकी रेंजेस। तो हम यहाँ पर ये सॉल्वर वाली जो शीट है जिसपे प्रिंसिपल अमाउंट 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4, टाइम पीरियड 1, सिंपल इंटरेस्ट 80 कैलकुलेट हो रखा है, ये वाली शीट
हम उस वाली फाइल पे इंसर्ट करेंगे। अब हम इसको फाइल को बंद कर देते हैं, यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर हम सॉल्वर वाली शीट को ऐड करेंगे। तो एक है यहाँ पे कि डायरेक्ट आप ओके करेंगे तो जो डेटा सॉल्वर पर था वो डेटा यहाँ आ जाएगा, लेकिन लिंक नहीं रहेगा। यानी कि अगर आप सॉल्वर वाली शीट पर कुछ चेंजेस करेंगे तो वो यहाँ भी रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप लिंक पर क्लिक कर देते हैं, अब क्या होगा, अब अगर आपने उस ओरिजिनल फाइल पर उस शीट पर कुछ काम किया तो वो चेंजेस यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होंगे। कैसे, प्रैक्टिकली एक बार करके समझते हैं। मैंने यहाँ लिंक पे क्लिक किया, ओके किया। अब आप देखिए यहाँ पर एक सॉल्वर नाम से शीट आ गई। अब आप इस शीट को आगे पीछे भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करिए, लेफ्ट बटन दबा कर रखिए, आपको शीट किधर ले जानी है आप आगे पीछे इसको मूवमेंट दे सकते हैं। यहाँ से आप इसकी जो हॉरिजॉन्टल रूलर बार है या हॉरिजॉन्टल आपकी स्क्रॉल बार है, इसको आप कम ज्यादा करके यहाँ से अपनी शीट पर जा सकते हैं। तो सॉल्वर को मान लीजिए हम इधर ले आए तो आप इधर ले आइए, मूव कर लीजिए। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप शीट को कहाँ मूवमेंट रखना चाहते हैं। अब हम यहाँ पर ये जो सॉल्वर वाली शीट ऐड हो गई जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट 2000 है, क्योंकि एज इट इज वो वहां पे लिखा था। अब हम इस शीट को करते हैं मिनिमाइज, कैल्क 1 वाली फाइल को ओपन करते हैं। अब हम कैल्क 1 में प्रिंसिपल अमाउंट जो 2000 लिखा है, यहाँ पर हम इसको 4000 कर देते हैं। इसको हम यहाँ पर सेव करते हैं, इसको हम यहाँ पर बंद कर देते हैं। वापस से हम ये वाली फाइल ओपन करते हैं, इसको भी हम सेव कर देते हैं, इसको भी हम यहाँ पर बंद कर देते हैं। अब लर्निंग आउटकम 2 यानी जिस पर हमने उस शीट को ऐड किया था, ये वाली फाइल, इसको ओपन करेंगे। यहाँ से वो पूछेगा अपडेट ऑल लिंक, यानी कि अगर कोई अपडेशन पुरानी फाइल में हो तो उसको अपडेट करें। हमने कहा यस। अब जैसे ही आपने, फिर एक ऑप्शन आया, दिस फाइल कंटेन्स लिंक टू अनदर फाइल, शुड दे बी अपडेटेड, क्या अपडेट करना है, यस। तो जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे आप देखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट जो 2000 था ये 4000 हो गया है। यानी कि उस ओरिजिनल फाइल में जो चेंजेस होंगे वो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये है, आप जब किसी शीट को इंसर्ट करते हैं बाहर के डॉक्यूमेंट से तो आप उसको लिंक भी कर सकते हैं। अब देखते हैं शीट का नाम बदलना है। मान लीजिए ये शीट 3 है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, रीनेम ऑप्शन है, या फिर आप यहाँ पर शीट पर डबल क्लिक कीजिए, जो शीट 3 लिखा था यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। मान लीजिए शीट का नाम रखना है माई शीट, आप इसको ओके कर दीजिए। तो ये हो गया आप कैसे मल्टीपल शीट्स को भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर ज्यादा शीट्स चाहिए तो आप नंबर ऑफ शीट्स, आप यहाँ पर आपने 3 शीट लिख दी, ओके कर दिया, तो आप देखिए यहाँ पर 7 शीट आ गई, यानी कि 4 पहले से थी, 3 और ऐड हो गई। तो ये एक तरीका है आप किस तरीके से शीट्स को ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल शीट्स को कैसे मैनेज भी कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन हमने देख लिए, इंसर्ट पे शीट ऑप्शन, राइट क्लिक करके इंसर्ट शीट ऑप्शन, और खाली जो स्पेस है यहाँ पर क्लिक करके शीट ऑप्शन, और नाम कैसे चेंज किया, राइट क्लिक करके, या फिर उस शीट के जो नेम लिखा है वहां पर डबल क्लिक करके। हमारा अगला टॉपिक है क्रिएट रेफरेंस टू अदर शीट्स बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। तो इसके लिए हम एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर लेकर चलते हैं पहले आपको, ताकि वहां से हम इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन समझेंगे। क्रिएटिंग द रेफरेंस विद द माउस ऑन द समरी शीट सेट अ प्लेस फॉर ऑल 5 अकाउंट्स। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि एक दूसरी शीट पर मान लीजिए कोई डेटा है और उस डेटा को हम अपनी ओरिजिनल शीट पर एक्सेस करेंगे। तो ये जो काम होगा इसे हम बोलेंगे रेफरेंसिंग करना। इसके लिए हमें क्या करना है, इक्वल साइन का यूज करना है। इक्वल साइन का यूज करने के बाद में आपको उस शीट को सिलेक्ट करना है जिसका आपको डेटा लेना है, उस सेल को आपको सिलेक्ट करना है, और फिर ये जो एक ग्रीन बटन है, ओके बटन, इसको एक्सेप्ट करना है। और जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो एक शीट का जो डेटा है वो दूसरी शीट पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये कहलाता है क्रिएट द रेफरेंसिंग विद द कीबोर्ड। प्रैक्टिकली इसको हम समझने के लिए अपनी ओपन ऑफिस कैल्क की स्क्रीन पर आते हैं। अब मान लीजिए ये एक स्क्रीन है जिस पर शीट 2 है ये। अब शीट 2 पर हमें इस सेल पर कुछ चाहता हूं, तो पहले हम शीट 1 पर आते हैं, या हम सॉल्वर वाली शीट पर जाते हैं। ये शीट है सॉल्वर नाम से, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर 4000 रुपीज लिखे हुए हैं, ये प्रिंसिपल अमाउंट है 4000। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट कौन से सेल में है, बी कॉलम के 3rd सेल में, यानी B3 में है, और शीट का नाम क्या है, सॉल्वर नाम है। अब ये जो सॉल्वर का B3 पर जो डेटा है, शीट का नाम सॉल्वर है और आपके सेल का नंबर B3 है। हम इसे शीट 1 या शीट 2 पर चाहते हैं। मान लीजिए शीट 2 पे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं सॉल्वर शीट डेटा। अब सॉल्वर शीट का जो डेटा है मैं यहाँ पर चाहता हूँ इस सेल में आए। हम इस सेल का यहाँ से बॉर्डर लगा लेते हैं ताकि हमें थोड़ा देखने में विजिबिलिटी अच्छी लगे। अब ये बॉर्डर लगा दिया है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, सॉल्वर पर क्लिक करेंगे, इस सेल पर क्लिक करेंगे और हम ये एक्सेप्ट बटन है यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। दोबारा समझते हैं, मुझे इस सेल पर सॉल्वर वाली शीट का जो एक सेल है उसका डेटा चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैंने सेल को सेलेक्ट किया या उस पर डबल क्लिक किया, इक्वल का साइन लगाया। कोई भी फंक्शन फॉर्मूला लगाना है आपको, कोई भी डेटा एक्सेस करना है तो इक्वल लगाना पड़ेगा। अब क्या किया, माउस से मैंने उस शीट पर क्लिक किया जिसका मुझे डेटा चाहिए, मैंने सॉल्वर पर क्लिक किया। अब हमें इस प्रिंसिपल अमाउंट यानी इस वाले सेल की वैल्यू चाहिए, तो मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया। अब आप देखिए यहाँ लिखा आ गया ऊपर इक्वल सॉल्वर डॉट B3, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही एक्सेप्ट किया तो अब आप देखिए आपकी शीट 2 पर सॉल्वर वाली शीट का डेटा यहाँ रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एक फंक्शन बन गया सॉल्वर डॉट B3। ये तो हो गया, आपने माउस की हेल्प से डेटा एक्सेस किया। मान लीजिए आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं इक्वल सॉल्वर डॉट B4। अब क्या हुआ, आपने कीबोर्ड से भी टाइप करके डेटा एक्सेस कर लिया। यानी कि तरीका समझना है। तरीका क्या है, आपको जिस भी शीट के जिस सेल का डेटा चाहिए इक्वल का साइन लगाइए, उस शीट का नाम लिखिए, डॉट लगाइए और उस शीट पे जिस सेल का डेटा चाहिए उस सेल का नाम लिख दीजिए। सिंपल है। हमें सॉल्वर वाली शीट पर B4 का डेटा एक्सेस करना था, तो मैंने शीट 2 पर लिखा इक्वल सॉल्वर डॉट B4। यहां पर मैंने यही काम माउस से किया। माउस से करने के लिए मैंने इक्वल साइन लगाया, सिंपल शीट पर गया, क्लिक किया, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। तो आप कीबोर्ड और माउस दोनों की हेल्प से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ही रेफरेंसिंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये था क्रिएट रेफरेंस टू अदर शीट्स बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। अब समझते हैं कि हम रेफरेंस किसी दूसरी शीट का भी कैसे डेटा ले सकते हैं। इसके लिए भी हम कीबोर्ड और माउस का कैसे यूज करेंगे, फिर आते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। अब ये तो था एक ही शीट, यानी कि एक ही फाइल में किसी दूसरी शीट का डेटा उठाना था। लेकिन अगर किसी दूसरी फाइल का डेटा उठाना हो यहाँ पर तो क्या करेंगे, अब उसको भी करके देखते हैं। हम यहाँ पे एक फाइल और ओपन कर लेते हैं। ये कैल्क 1 वाली फाइल ओपन कर लेते हैं। अब इस समय हमारी स्क्रीन पर 2 फाइलें खुली हैं। लेफ्ट में देखिए कैल्क 1 है और दूसरी फाइल है लर्निंग आउटकम। अब कैल्क 1 पर आते हैं। कैल्क 1 पर कंसोलिडेट नाम से एक शीट है। मान लीजिए कंसोलिडेट वाली ये शीट है। इस पे B3 रवि का अप्रैल 2018 का एक डेटा पड़ा हुआ है 50। अब ये डेटा हमें दूसरी वाली शीट पर चाहिए, यानी कि कंसोलिडेट हमारी शीट का नाम है, फाइल का नाम कैल्क 1 है और कैल्क 1 में कंसोलिडेट शीट पर B3 वाला सेल हमें उस शीट पर चाहिए। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे, दूसरी वाली शीट को ओपन करेंगे, इस सेल पर क्लिक करेंगे और फिर हम वापस अपनी ओरिजिनल वाली शीट पर आएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर क्या आ गया, फाइल का पूरा पाथ आ गया कि डेस्कटॉप पर ये फाइल है जिसका नाम है लर्निंग आउटकम 2 और इस पे हम कैल्क 1.ods वाली फाइल से कंसोलिडेट वाली शीट का B3 का डेटा लेंगे। हम जैसे ही एंटर करेंगे तो अब आप देखिए यहाँ पर 50 आ गया है। यानी कि अब अगर आप कैल्क 1 पर यहाँ पर 50 की जगह 65 कर देंगे। अभी हमने डेटा सेव नहीं किया, हम इसको सेव कर देते हैं। इस फाइल को कैल्क 1 को बंद कर देते हैं, इसको भी सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ये डेटा अपडेट हो गया है। तो ये है कि हम किस तरीके से रेफरेंस कर सकते हैं किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के डेटा को अपने ऑप्शन पर। और अगर यही काम हमें कीबोर्ड से डन करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल क्या काम है कि अगर रेफरेंस कीबोर्ड से करना है, पाथ नेम यानी कहां से वो फाइल आई है, शीट का नाम और सेल का नाम, जिसका सिंटैक्स है सिंपल इक्वल, आप अपनी फाइल लिखिए, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगाइए 3, पाथ लिख दीजिए, पूरा एड्रेस लिख दीजिए, मान लीजिए आपकी जो भी ड्राइव में डेटा है, देन आप फाइल का नाम लिखिए, फिर उस शीट का नाम लिखिए और फिर सेल का नाम लिख दीजिए। तो ये एक तरीका है कि आप कीबोर्ड की हेल्प से काम कर सकते हैं और माउस की हेल्प से भी किसी दूसरे डॉक्यूमेंट की किसी पर्टिकुलर शीट का सेल आप वैल्यू अपनी ओरिजिनल किसी शीट पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस करिकुलम के हिसाब से लर्निंग आउटकम के 3 पॉइंट क्लियर किए हैं।